where we need to start from today, we just had a recap of what we did in the last class. Okay, so now we need to look at lean production now. What is actually lean production? I've already given you a fair idea of what a pull manufacturing system is. अब वो pull manufacturing system जो हमने बात की ना, this is actually a lean production model. वो lean production पे काम कर रहा है. अब lean production में है क्या? या lean thinking model? What is this lean thinking model? This is a 5-step approach. इसमें 5 steps हैं. What do you do in the first one? First of all, you need to find out the value in a product or service. See, I don't have a marker. I don't have a marker. Pause कर दीजिए. So let's start lean thinking model. Now lean thinking is actually a 5-step approach. अब हम इसमें करते हैं. Now the first thing you need to do is when you look at a good or a service, you need to find out कि इस good or service के अंदर what is of value. ठीक है? Find that value in that good or service. अब कोई ये marker, let's talk about this marker. ये marker क्यों अच्छा है? मैं कहता हूँ ये marker इसलिए अच्छा है क्योंकि ये देखिए ये बंद हो जाता है. ठीक? ये सूखेगा नहीं इस तरह क्योंकि ये बंद हो जाएगा क्लोजली, बहुत क्लोजली इसका लिड क्लोज हो जाता है. और फिर इसकी जो ग्रिप है दैट इज अ वेरी गुड ग्रिप. मतलब मार्कर बाकी मार्कर्स की तरह नहीं कि आपको लगे कि आपने कोई मार्कर यूज कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे आप पेन यूज कर रहे हैं, पेंसिल, शायद इसकी ग्रिप अच्छी है, ब्ला 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 व्हाटएवर द फीचर्स आर देयर. सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू इन द स्पेसिफिक गुड और सर्विस एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोसेस दैट डिलीवर्स दैट. अब ये वैल्यू किस तरीके से इसके अंदर आ रही है? लुक एट दैट बिजनेस प्रोसेस. अब हमने कहा बिजनेस प्रोसेस कैन बी एनीथिंग ना. वी लुक एट ऑल दोस एक्टिविटीज राइट फ्रॉम R&D टिल दी लास्ट वन कस्टमर रिलेशन तक, जो कस्टमर फीडबैक या जो भी आप कस्टमर मेंटेनिंग एक्टिविटीज, ये जितने काम है ये सब बिजनेस प्रोसेस. तो आप देखिए जो इसकी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर वो जो खास बात है या जो चीज इसके अंदर वो अहमियत डालती है, वो इसको वो चीज बनाती है जो ये है, तो उसका बिजनेस प्रोसेस क्या है? वो कौन सा बिजनेस प्रोसेस है which delivers that value. Now you know the business process. हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने R&D बहुत अच्छी की, ठीक, we've researched, और वो जो हमने इसके अंदर जो फीचर डाला है that's due to my research. Now you need to organize work arrangements around the flow of the business process. जो business process के अंदर है उसी के मुतालिक वो सारे आप काम करें. आपने काम कर दिए. Now you create a pull system. It does not say a push system, it says a pull system. Now in a pull system we know that you do not start production on the basis of forecast. You wait for the customers order. इसका मतलब ये पहले से प्रोडक्शन नहीं करूंगा, मुझे पता है इसके अंदर क्या चीज है. I've told the customers about that value और मैं उसको कस्टमर के दिमाग में डाल चुका हूं, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूं और मैं पुल सिस्टम बनाता हूं that responds to customers orders. I wait for the customers orders. वो जब आएंगे तो मैं manufacturing start करूँगा and then I continuously try to improve the process. मैं business process को improve करता हूँ which leads to continuous improvement. ठीक है? और इसके लिए continuous improvement programs होते हैं which you might have studied before. Yes? No? Yeah. Continuous improvement programs. नहीं पढ़ा? Might have studied TQM? No? Might have started JD? No? Good. नहीं पढ़ा होता है. JD is just in time. Yeah, JD is just in time. So basically this relates closely to JD. So you don't know what is the JD? You do? Yeah, from all levels. No, management. हाँ, ये theories आप management पढ़ चुके हैं. Continuous improvement programs आप पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से. I'm not sure. Yes. But this is what you normally study in your management course. ठीक है? तो मैंने आपसे कहा था the first chapter will be talking about management concepts and we will relate it to management accounting. ठीक है? So this is what we do in a lean production system. Got the idea, class? Lean production clear? Lean production is clear? Yes. Okay. So let's move on. Now when we have a full manufacturing system or a lean production, this will happen. First thing, inventory cost will reduce. Inventory will reduce. And when we are continuously trying to improve the product or the service, effects will reduce. Reduces wasted effort because you are doing it again and again, trying to look at the process, किसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. तो आपके जो redundant काम है,
जो काम के काम नहीं है उसको आप हटा देते हैं सिस्टम से. Shortens customer response times because you are waiting for the customer orders, so the customer response time needs to be reduced. वो भी कम. This concept it's actually a very good and sounds a very good system if you are actually using a pull manufacturing system. Ji. Sir, it says that it reduces wasted effort and reduces time and stuff. Sir, so when you order in that time, you have to pass order आता है तब आप production शुरू करते हैं because you are actually following GID. Yes, and then you get the products and stuff. तो उसमें ऊपर की time waste होता होगा कि मतलब you don't have products and then. तो इसलिए तो आपको कहा कि do you know what is GID? ठीक है? So GID is just in time. Now, what does just in time mean? Just in time mean when the customer orders me, मैं just in time customer को provide करूँ. That means less response time. A shortens customer response time. ठीक? साथ साथ इसका एक और मतलब कि जब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ, ठीक? तो मुझे जो मेरे सप्लायर्स हैं, वो मेरे साथ इन द सेम वे ट्रीट करें. इसका मतलब ये है कि मैं ड्रीम उनको ऑर्डर दूँ, उसी वक्त मेरे पास रॉ मटेरियल आए, मैं जल्दी से प्रोड्यूस करूँ, मैं कस्टमर को जल्दी दूँ. So that reduces wasted efforts, wasted time. It's only possible if you are using this. And why I said this is not a good idea for Pakistan, in a country like Pakistan, because normally you cannot follow GID that easy. Because of communication problems, because of transportation problems, because of technology, maybe we lack in technology, because of your manufacturing lags. अभी तो फिर भी situation has actually become a bit better. Otherwise, Toyota Pakistan जो था वो आपको कितने दिनों बाद गाड़ी दे रहा था? अभी नहीं, कितने दिनों बाद गाड़ी दे रहा था? Almost 6 months. ठीक है? So here goes your जनाजा of your GID. ठीक है? आपका तो जनाजा GID के अंदर ही निकल आएगा. 6 महीने तो आपको खाली वो उस पे लगेंगे. ठीक है? सर इसमें कस्टमर ट्रस्ट की भी काफी बात होती है कि वो फिर रिसीव ही नहीं करते एक दफा ऑर्डर देके इन पाकिस्तान. Pakistan? Yes sir. But when you place an order, you have to pay a down payment of let's say 50% or 60%. Exactly, but अगर आपके वो सर अक्सर दराज वगैरह पे इधर जिस तरह हमने भी किया था तो वो कस्टमर सर उनको भेज दो, वो कहते थे अब हमें नहीं चाहिए. तो मतलब हमें तो उस वक्त चाहिए था. डिलीवरी और उस चीज़ों में प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद कहते थे हमें ये नहीं चाहिए, वो हमें फिर वापस रिटर्न आ जाते थे इस तरह सारे. तो ये भी एक कस्टमर ट्रस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में. Okay. फिर then in order to reduce that and in order to see whether you have genuine customers or not, शायद आप उन्हें कह दें कि अपना एक क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड कर दें, क्रेडिट कार्ड नंबर को प्रोवाइड कर दें पहले से, you will not charge you yet, ठीक है? And you bind them to a agreement और उनसे एग्रीमेंट साइन कराने शुरू में जब वो प्लेस ऑर्डर करें तो एग्रीमेंट साइन करा दें कि they will have to accept it, otherwise you will have the right to charge their credit card, ठीक है? और डेबिट कार्ड पर आप उसको चार्ज कर दिया करें अगर वो ना रिसीव करे. बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं इस तरह. लेकिन yes, that's a general problem. And I did see a video on that कि किस तरह वो एक बंदा था वो कह रहा था कि मैं तो इसमें बहुत खराब हो गया due to the same problem which you said. ठीक है? Yes, it's a general problem. So yes, you can say in Pakistan it does not work. ठीक है? शायद due to customers like these who would not accept your orders. अब मुझे नहीं पता कि legally they are bound to or not. So we'll have to look at the agreement which you asked them to sign. And normally people do not read it. है ना? आप कितने agreements को read करते हुए, sign करते हुए read कर लेते हैं? No sir. आप सीधे से नीचे जाते हैं I agree. Yes sir. So what do you do? So this is most probably what they do. Okay? So you can do it. Yes, that would be a good idea. आप एक लंबा चौड़ा document बनाएंगे और उसके अंदर each part clause डाल देंगे. So most probably they would just press I agree and then you have approved. Yes, you have agreed. Okay? But otherwise, maybe it's due to the culture. Okay? So that's a cultural shock. Maybe it's due to culture. ज़्यादातर इसी वजह से. हम नाम भी तो मुसलमान हैं, हमने एक बात कर दी है लेकिन उससे पीछे हट जाते हैं. लेकिन otherwise we should not do it. Okay. So this thing is clear. जाए. Okay. Now, lean thinking is used to improve business process. That link comes together. This is what we've said. So you are improving your process. TQ की हमने बात की और continuous improvement programs. तो वो यही होते हैं कि आप अपने processes को improve करते हैं. तो इसका मतलब आपकी product improve होती रहेगी और जब आपकी product keeps on improving, your defects reduce. Which leads to the second one, which is Six Sigma. अभी हम आगे जाएंगे Six Sigma. The term supply chain management refers to the coordination of business processes. If you remember, we talk about value chain ना. हमने value chain की बात की ना. Yes sir. ये value chain की बात की.
और हमने अभी थोड़ी देर पहले we talked about suppliers कि अगर if you are doing if you have a JIT, so it's not actually about me and my customer, it's actually about me who is the producer or the manufacturer and my customers along with my suppliers. So it works both ways. ये दोनों तरीकों से काम कर रही है, ये इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि if I have JIT and I respond quickly to my customers, so I'm actually a customer of my supplier, so my supplier would respond quickly to me, है ना? वो भी quickly मुझे respond करेंगे ना? जब वो मुझे quickly respond करेंगे तो मेरे पास जल्दी raw material आएगा, I would manufacture और मैं आगे उठाकर कस्टमर को फिनिश गुड प्रोडक्ट दे दूंगा. ठीक है, तो अब ये सारा बन जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एंड व्हाट डज इट मीन? इट रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस. सो दिस इज माय प्रोसेस एंड आई हैव अ कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट बिजनेसेस. किसके साथ? सप्लायर के साथ और फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ताकि वो आगे कस्टमर को टाइम की चीजें दे सके. ठीक है, तो ये एक्चुअली रेफर्स टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और इसमें फिर you can do a degree in supply chain management if you want to master in that. Okay, तो इसमें आप लोग further भी आगे जा सकते हैं. So it's actually a huge topic and it's quite a burning issue nowadays. जी, clear है? Yes, sir. Supply chain management भी clear हो गई? Okay. So now let's talk about theory of constraint. Have you done theory of constraint before? Economics? Management? Have you done quantitative methods? No. Or quantitative maths? No. ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी? मैथ्स अब तक पढ़ी है इधर? Business management. बिजनेस मैथमेटिक्स. ओके, सो बिजनेस मैथ में शायद ये चीज आप पढ़ चुके हैं. अभी पढ़ रहे हैं. इसमें आप इस कंस्ट्रेंट्स को पढ़ेंगे और इसकी एक्चुअली कैलकुलेशंस भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट? व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट बेसिकली? कंस्ट्रेंट कमी. When you stop something or somebody is stopping you to do something, so you say there is a constraint. Yes. Constraint आप कोई काम नहीं कर सकते. रुकावट. So a constraint is also called a bottleneck. Bottleneck कभी देखी? Yes, sir. ठीक है, bottleneck actually a bottleneck would be built in a way that it reduces ना. So it reduces the flow of water. यानी पानी तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन there is a bottleneck जहाँ से वो निकलेगा. So it reduces. So it's sort of a constraint. Constraint हमने कहा रुकावट है. तो पानी ज़्यादा अच्छा निकल जाता है अगर नेक ना होती और आप अगर किसी ग्लास से पानी डालें तो वो जल्दी जाएगा और बॉटल से पानी डालेंगे तो वैसा चल जाएगा. ठीक है, bottleneck, रुकावट, constraint. Okay. So the constraint is also called a bottleneck is something which would reduce रुकावट डालेगा, prevents you from getting more of what you want. रुकावट डालना prevents you from getting what you want. So it can be anything. It can be production. It can be anything. Wherever there is a rukavat or there is something which is stopping you to get what you want, चाहे आप पानी डाल रहे हैं, चाहे आप सालन डाल रहे हैं किसी चीज से, चाहे आप कोई प्रोसेस है वो करना चाह रहे हैं और आप रॉ मटेरियल तो बहुत पुश इन कर रहे हैं, लेबर भी बहुत है, लेकिन फिर भी यार प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रही. शायद लाइट नहीं होती, शायद लाइट भी है, लेकिन आपकी मशीन एक घंटे में एक प्रोडक्ट बनाती है, तो वो पूरे घंटे में 8 घंटे की शिफ्ट में it will only manufacture 8 products. Although you have lots of raw material, lots of labor, so there is a rukavat, there is a constraint. So this is called a constraint or a bottleneck, and this is the theory of constraint. ये theory of constraint का starting point है कि there is a bottleneck. So now what do you do? The theory of constraint is based on the observation that effectively managing the constraint is the key to success. Now you know कि अगर ये machine का problem है, so I need to remove it. मुझे इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर रोज दिन के 8 यूनिट ही बनेंगे. Although I have lots of labor with me, I have lots of raw material with me, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका मशीन का प्रॉब्लम है. So you need it to succeed. Now the constraint in a system is determined. Now how would you know that there is a constraint? यानी जहां पर रुकावट आ रही है वो constraint. So a constraint in a system is determined by the step that has the smallest capacity. जहां पे आपकी कैपेसिटी कम हो जाए, जहां पे आपकी कैपेसिटी कम हो जाए, सब काम सही चल रहा है, सही चल रहा है, और यहां पर आके एकदम स्लो हो जाता है, फिर इसके बाद दोबारा सही चल रहा है.
लेकिन जहां पे स्लो हो जाता है, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, दैट इज द कंस्ट्रेंट, यू नीड टू रिमूव दैट, इसको हटाना पड़ेगा एक वर्क प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गई कंस्ट्रेंट की, समझ आ गई थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट की, समझ आ गई। सर हम कंस्ट्रेंट ऐसे मालूम कर सकते हैं कि अगर कंपटीटर हो या कोई और ऐसी हमारी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा हो चीज और हम कम कर रहे हो, हमारे पास लेबर भी ज्यादा है, कुछ इस तरह से हम डिटरमाइन हाँ, शायद ये तरीका आप कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अनदर बिजनेस एंड फाइंडिंग आउट द सीक्रेट ऑफ द अदर बिजनेस, फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर कि आप तो सब कुछ सही कर रहे हो। अगर आप ही सब कुछ सही नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, आप ये देखें कि यार अजीम किस तरह पढ़ता है। पहले आप तो देखें ना कि आप वो 8 घंटे पूरा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आपके पास नोट्स पूरे हैं नहीं है, आप टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे, ब्ला 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 सब कुछ। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, देयर इज नो कंस्ट्रेंट एंड स्टिल अजीम इज गेटिंग गुड मार्क्स देन यू, तो फिर आप सोचेंगे अजीम वो कौन सा काम कर रहा है जो आप नहीं कर सक रहे, एंड देन यू नीड टू डू इट, फिर देन यू नीड टू लुक एट योर कंपेटिटर। ठीक है, अदरवाइज आई वुड से कि फर्स्ट इंप्रूव योर प्रोसेस, अपने प्रोसेस को तो पहले इंप्रूव कर दें। आपके अपने प्रोसेस में फॉल्ट है, प्रोडक्शन से ही नहीं हो रही, कोई एक जगह पे फॉल्ट है, सो ट्राई एंड रिमूव दैट, उसको रिमूव करें, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, इसको सही। ठीक है, ओके, सो नाउ हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, दिस इज हाउ द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट वर्क्स। ओके, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द वीकेस्ट लिंक, पहले तो ये देखें कि वो मसला कहां पर है, वेयर इज दैट मसला, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी कहां पे है। सो यू आइडेंटिफाई द वीकेस्ट लिंक, देन यू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। अब आप कहते हैं इसको अच्छा करो, फिर आप कहते हैं कि ये जो लिंक, ये जगह जो है जहां पे कि कम हो रहा है सब कुछ, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, ट्राई टू इंप्रूव दैट, डू समथिंग सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन दैट वीकेस्ट लिंक। ये वीक है, इसको अच्छा करो। ठीक है, एक मशीन है, नई मशीन है, दो मशीन है, रेंट पे मशीन है, मशीन नहीं खरीद सकते। ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू, अलाउ द वीकेस्ट लिंक टू सेट द टेम्पो, उस वीकेस्ट लिंक को चलने दें, फोकस ऑन इंप्रूविंग द वीकेस्ट लिंक, उसको इंप्रूव करें, then recognize that the weakest link is no longer there. So then when you realize it's not there, रुक नहीं जाना, do the process again. अब वो तो improve हो गया, now look at the process again, now what is the smallest capacity, हो सकता है आपको your smallest capacity जहाँ पे सब कुछ कम हो रहा हो, अब उसको करें, उसको improve करें। So once again you will be doing all these things, you will be continuously improving your process, आपका process improve होगा, total quality management है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थियरीज हम पढ़ रहे हैं, ये सब का सब इज वर्किंग ऑन इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेसेस, ये हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव, हमारे बिजनेस को इंप्रूव। दिस इज योर थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट, एंड इफ यू रिमेंबर देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड द वीकेस्ट लिंक, किसी ने देखा? सॉरी, वीकेस्ट लिंक बीबीसी पे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, द वीकेस्ट लिंक, और वो इसको बहुत अच्छा एग्जांपल। This is how it works. There is a team of 4 members, let's say. There are 4 members, and then I'm asking you questions. So I give you 1 minute, and I ask question. First I ask question from RS, okay? Or if he answers, so then I'll ask the next question from the next person. And your name is? SN. Then from Azim, and then from? Sultan. लेकिन जब वो आंसर करेगा, अगर वो आंसर नहीं करेगा, पास कर देगा, तो फिर आएगा SN, नहीं तो नहीं आएगा, फिर RS पे रोका रहेगा। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ, then you have only 1 and I'll see how many questions you get right, कितने questions आप सही करते हैं 1 मिनट के अंदर। पहला राउंड हो गया। Now you find out that somehow SN is taking more time to answer the questions, so SN is the weakest link, so remove SN. So now you are 3 left, weakest link हट गया। Once again I'll be asking questions again। अब इन तीनों में से there must be someone जो कि टेम्पो को कम कर रहा होगा। Once again, let's say Azim को हटा दे next stage पे। So now there are 2 left, ठीक है? So that's how the weakest link works। इसी तरीके से ये काम करता है। जो weakest है उसको improve करें, इसमें तो आप हटा नहीं सकते because it's a business process, जरूरी है उसके लिए, आप उसको improve करें, फिर आप दोबारा चेक करें, हो सकता है कोई और जगह weak हो, उसको improve करें। So you will keep on improving your business process। Got the idea? जी। Sir, this is like a whole process, there are like steps, right? Yeah, there are We steps। just link की बात करते हैं, so do we talk about individuals or do we talk about those specific? Actually I'm talking about a process, it's actually a process, so not about individuals, about processes। ठीक है, okay जी। सर ये सेकंड स्टेप जो है कि अलाउ द वीकेस्ट लिंक
set the tempo मतलब इसका क्या मतलब? इसका मतलब उसको काम करने देना, कि आपको पता चले कि टेम्पो सेट हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये टेम्पो चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, देन इट गोज ऑन लाइक दैट, एंड देन इट स्लोज डाउन, एंड देन इट गोज लाइक दैट, एंड देन इट स्लोज डाउन, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू सी कि ये टेम्पो सेट हो गया है और कहाँ पर आपको मसला आ रहा है, तो फिर आप उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें, फिर दोबारा चलेगा, यू फाइंड आउट कि हाँ आप स्मूथ जा रहे हैं, ठीक है, स्मूथ जा रहा है क्योंकि वो बिगेस्ट थिंग इम्प्रूव हो गया, ठीक। अब आप दोबारा देखिए कि अब इसमें हो सकता है कहीं और जगह पे आके थोड़ा सा स्लो हो जाता है, सो नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, सो डू इट अगेन, ठीक, फिर उसको भी इंप्रूव करो, फिर कहीं और आ रहा है उसको भी, सो कंटिन्यूअसली यू विल बी इंप्रूविंग, सो इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये चलती रहेगी, या आपको हर टाइम करना पड़ेगा, ठीक जी, गॉट द आइडिया, theory of constraint, clear class? Yes. Okay, so now let's move on to Six Sigma. Once we are done with that, we will take a break. ठीक है, हम जो क्लास की ब्रेक है उसको ले लेंगे. Six Sigma देखेंगे. Six Sigma. जी, any idea about Six Sigma? Six Sigma. Any idea? नहीं? Have you done statistics? No, So it's not Sigma का idea भी. कौन सेमेस्टर? yes sir, no, नहीं पता. नहीं पता. So let's leave it. So we will just talk about it in simple words so that you understand what this series is about. Okay, so now what is Six Sigma? Just like I said, all these programs are for improving the business process. ये business process को improve करता है. तो जो Six Sigma है, अच्छा by the way, have you heard of this certification somewhere? Six Sigma की certification कहीं पे सुनी? No sir. No sir. नहीं? कोई company and it says it's a Six Sigma certified company? No sir. Okay, so by the way, जब आप इतना अच्छा काम करते हैं, so you become a certified company for Six Sigma, और फिर इसका मतलब आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है. Okay, so let's start. So Six Sigma once again improves your business process, and how does it improve? A process improvement method which relies on customer feedback. Customer feedback. So if you are the customer of my product, so you will give me feedback, and I'll rely on your customer feedback and fact-based data gathering. So I'm also gathering data. मैं figures लेता हूँ, कुछ देखता हूँ कि क्या figures हैं मेरे पास. मैं marker बनाता हूँ, पहले वो plastic बनाता हूँ, तो उसका क्या data है, कितने किलो लग रहा है, कितना body बन रही है, वो सारी bodies 1000 एक दिन में बनाता हूँ, तो 1000 एक दिन में markers बनते हैं या नहीं? ठीक है, यानी 1000 की बजाय 950 बनते हैं, बाकी 50 खराब हो जाते हैं, उनको दोबारा मेल्ट करता हूँ प्लास्टिक को, फिर दोबारा बनाता हूँ. सो आई ट्राई टू गेट डेटा, मैं ये डेटा इकट्ठा करता हूँ सारा, फैक्ट बेस्ड डेटा लेते हैं, एंड देन आई एनालाइज द डेटा. अब मैं फिर उस एनालाइज करता हूँ यार क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस लाइक, क्या प्रोसेस फ्लो है, या क्या कोई मशीन सही काम नहीं कर रही, रॉ मटेरियल मेरा खराब है, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट. सो आई फाइंड आउट एनालिसिस टेक्निक्स to drive process improvement so that I can improve this process ताकि ये अच्छे तरीके से. So now what's my focus? I am actually focusing on defects over here. यहाँ मैं defects को देखता हूँ. हमने पिछले उसमें business process को देखा ना कि मसला कहाँ पे है, slow कहाँ पे कोई चीज slow हो जाती है, उसको मैं सही. Over here I am looking for defects. So Six Sigma इसका मतलब है कि आपके डिफेक्ट्स कितने हैं, refers to a process that generates no more, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. कितने डिफेक्ट्स होने चाहिए? 3.4. लेकिन कितनी प्रोडक्ट्स में से? एक. अगर मैं 1 मिलियन प्रोडक्ट्स बनाऊं, और 1 मिलियन प्रोडक्ट्स कितनी होती है? 10 lakhs. यानी अगर मैं 10 लाख यूनिट बनाऊं मार्कर के, तो उसके अंदर 3.4 खराब. Percent या products? 3.4 defects per million opportunities. I think percent 3.4%. परसेंटेज पे या 3.4 Units पर. 3.4 out of a million. Percent में अगर आपने चेंज करना है 100 में, so let's change into 100. 3.4 divided by 1 million multiply by 100, which equals 0.0000 906. Check it. Check it. काफी कम. Oh, sorry,
963 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 जी 0.00034 5 ठीक है। यानी एक अगर परसेंट की बात करें तो एक में से 100 अगर बना तो उसमें से एक खराब नहीं, उसमें से 0.00034 मतलब सारे सही हो तकरीबन। तकरीबन यानी अगर मिलियन बनाऊंगा ना 10 लाख तो उसमें से 3 खराब हो गए, 3.5 से भी कम 3.4 3.4 से कम, नो मोर देन, इससे ज्यादा नहीं। इतना अच्छा आपका प्रोसेस है इसका, इसका मतलब डिफेक्ट रेट इज एक्चुअली वेरी लो, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, 10 लाख बनाऊंगा तो कहीं पे 3 खराब होंगे, ठीक है। सो दैट मींस इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। तो फिर जो कंपनी इसको अचीव कर लेती है फिर वो बड़े फखर से बोली 6 सिग्मा कंपनी, मैं 10 लाख बनाता हूं तो उसमें 3 खराब होगा। So when you hear customers, when they actually know about such companies, so they would go for such companies, ना? कहेंगे यार इसकी डिफेक्ट्स कम है, इसके मार्केट ज़्यादा अच्छे हैं, किस्मत खराब हुई तो हो सकता है मैं इसमें आ जाऊँ, नहीं तो चांस है कि नहीं आऊँ, ठीक? Probabilities की बहुत कम होती है, so that's why it's a good one. Sometimes associated with the term zero, almost zero, so that's why it is called as zero. So this is Six Sigma. सर ऐसी कंपनी फिर वेरीफाई होगी कि 6 सिग्मा या खुद ही Obviously, verified होगी, इसकी अपनी एसोसिएशन होगी जो इसको चेक करेगी. You can have a look at it and you can do it for your assignment. अगर कोई एक बंदा करना चाहे कि 6 Sigma certified कंपनीज कौन-कौन सी हैं और उनके बारे में बता सकता है ताकि आपको कैसे हाँ उनके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है? You can present it. Okay. So now 6 Sigma, how would this code process work? It will be a DMAIC framework. DMAIC framework. DMAIC. ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसमें 5 चीजें, ठीक है, 5 चीजें इसमें आती हैं। First of all, you need to define. पहले आप डिफाइन करें, क्या डिफाइन करें? आप डिफाइन करें स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, जो आप लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, ये जो काम है, जिस प्रोजेक्ट को या जिस चीज को आप देखना चाह रहे हैं कि ये 6 सिग्मा हो जाए, वो क्या चीज है, उसमें आपने क्या करना होता है, डिफाइन करें, ठीक है, उसको लिख दीजिए। Diagram the flow of the process. So you make a diagram. This is what I do. सबसे पहले मैं प्लास्टिक लेता हूँ, फिर मैं उस प्लास्टिक को जलाता हूँ, फर्नेस में डालता हूँ, फिर वो मेल्ट होती है, फिर वो जाती है मोल्डिंग में, फिर ये बॉडी बन जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। So you define, you diagram. पहले डिफाइन करेंगे कि हमारा काम क्या है, हमारा काम मार्कर बनाना है, फिर आप कहेंगे अच्छा इसको पूरे प्रोसेस का डायग्राम बनाओ, बना दी। Establish the customer's requirements. अब रिक्वायरमेंट क्या है आपसे कि आपने करना क्या है, आखिर में मुझे एक ऐसा मार्कर मिलना चाहिए जिसकी इंक नहीं सूखती, जिसका कैप फर्मली बंद होता है, जिसकी ग्रिप अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। You establish that, you write that. This is what you've done in the first stage, define. Okay. Now the second one is M. DMAIC. M is measurement. Now you measure things. अब आप measure करें कि क्या क्या है। measure क्या करेंगे? अब देखें जब हम लोगों ने इसकी बात कर रहे थे, we were talking about 6 Sigma. So we said on customer feedback and fact-based data gathering. Fact-based data gathering. तो मुझे data gather करना पड़ेगा। अब data gathering के लिए क्या करूँगा? Gather baseline performance data. अब मैं जाके वो उस प्रोसेस को देखता हूँ। अच्छा इस प्रोसेस में क्या है? कितने हमने किलो प्लास्टिक लिया, उससे कितना बनाया, क्या किया, कितनी देर में कितनी चीजें बनी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब प्रोसेस हर चीज। So you gather baseline performance data related to the existing process. जो प्रोसेस आपने इससे पहले लिखा, डायग्राम बनाई, उसके बारे में डेटा ले लिया डेटा, narrow the scope of the project to the most important problems. आपको पता चल चुका होगा कि इसके अंदर क्या क्या मसले हैं। अब इसके अंदर सबसे important मसले हैं, उनकी तरफ चलिए, ठीक चलेंगे। Now next thing is analyze. अब हमने कहा था कि it's a fact based data gathering and analysis. ठीक है? So define, measure, analyze. अब आप चले जाते हैं एनालिसिस की तरफ। अब जो आपने डेटा गैदर किया था यहाँ पे जो डेटा है, अब उसको एनालाइज करें, उसको देखिए यार मसला क्या है, इसका रीजन ये क्यों हो रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे कहा ना कि इंपॉर्टेंट मसले हैं, ये क्यों हो रहे हैं,
आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द मेजर्स जो यहाँ पे हमने एनालाइज कर लिया, देन यू इंप्रूव आए। अब आप इसको इंप्रूव करें इस प्रोसेस को, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? डेवलप, इवैल्यूएट एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। जो प्रॉब्लम आपने कह दिया कि यार ये मसले थे, उसका आपको रीजन पता चल गया, उसका क्या रीजन है, आप उसको इंप्रूव करें, डेवलप करें, इवैल्यूएट करें, इम्प्लीमेंट करें उस सॉल्यूशन को जो आपने यहाँ पे मसला देखा था, उसका कॉज आपने यहाँ पे देखा, अब उसका सॉल्यूशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्या करें? अब चेक करें यार ये सही हो गया कि नहीं। कंट्रोल, हमने कहा था ना कंट्रोल बेसिकली व्हाट वी डू, प्लान और एक्चुअल दोनों को देखें, कंपेयर, ठीक। सो कंट्रोल इंश्योर दैट प्रॉब्लम्स रिमेन फिक्स्ड। ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे था, जिसका आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया रीजन, जिसका यहाँ पे आपने सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया, क्या वो फिक्स हो गया? फिक्स है अभी तक से, यानी आपने खाली इसके ऊपर टेप लगा दी कि चलो टेम्परेरी हो जाए, बाद में फिर वो खराब हो। ओके, सीक टू इंप्रूव द न्यू मेथड्स ओवर टाइम। दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें। पहले हो सकता है मसला आया कि प्लास्टिक की क्वालिटी खराब थी, वो सही कर दी। फिर दूसरा मसला आया इंक थोड़ी डार्क थी, उसको सही कर दिया। फिर दोबारा देखा। So that means your product will keep on improving day by day. So it's a continuous improvement program. ठीक है? तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर वक्त अच्छी होती है। ये नहीं कि बस एक बार हमने कर दिया कोई चीज बस कर दिया, ठीक है? That's why when you look at companies abroad, okay, foreign companies, so they are actually implementing all these things. So that's why the quality of the product will not go down. Whereas over here, हम एक दिन तो बहुत अच्छी चीजें बना देंगे और अगले दिन उसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं और फिर इस वजह से कस्टमर्स खराब, ठीक है? तो शायद कुछ कस्टमर इस वजह से भी खराब हो जाएंगे, कसूर उनका नहीं, शायद हमारा ही। हमने एक बार अच्छी प्रोडक्ट दी, उसके बाद हमने खराब प्रोडक्ट दी। So there can be many reasons. Okay, class, let's take a 2 minutes break and then we'll meet after 2 minutes. Let's move on, Ji. So now we've done three theories. We've done lean production, we've done theory of constraint, and we've done Six Sigma. And all of them relate to continuous improvement program. ठीक है? यानी वो ये कर रहे हैं कि वो आपके बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करें, क्या ताकि आपका बिजनेस प्रोसेस अच्छा हो जाए। अब हर कोई अलग तरीके से करता है। सिक्स सिग्मा कहता है डिफेक्ट्स कम करें, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव। थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट कह रहा है वीकेस्ट लिंक को हटाएं, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव। लीन प्रोडक्शन कह रहा है कि लीन थिंकिंग करें। लीन थिंकिंग का मतलब हो गया कि आप लोग जो आपका मेन काम जो है, जो वैल्यू है, तो वैल्यू गिविंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करें। तो सारे का काम ये किया बेसिकली, all of them are helping you to improve your processes or your business. Now, e-commerce. Now, once again, this is something which is very common nowadays. You are using internet to conduct business. बहुत आसान है, आजकल हर कोई ये काम कर रहा है. You have .com companies now, and you have companies who are actually hybrid, so they are working both ways. है ट्रेडिशनल कंपनी, लेकिन इसका ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। जिस तरह बैंक्स हो गए, रिटेलर्स हैं, बहुत सारे रिटेलर्स हैव ऑनलाइन प्रेजेंस एंड यू कैन परचेज ऑनलाइन। नाउ हाउ इज दिस हेल्पिंग, या व्हाट्स हेल्पिंग दिस आउट? द इंटरनेट। अब ये सारे बिजनेसेस या ट्रेड इंप्रूव हो रहा है ड्यू टू द इंटरनेट, प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट। कम्युनिकेशंस अच्छी हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को पहुंच सकता हूं, कस्टमर्स मुझ तक पहुंच सकते हैं आराम से, और जो बैरियर्स थे वो कम हो गए। ऑर्डर देने में बैरियर्स कम हो गए, ठीक है, मुझे कस्टमर तक पहुंचने में बैरियर्स कम हो गए। पहले मैं एक को जाके बोलता था मेरा ये प्रोडक्ट है, नाउ आई कैन हैव एड्स, किसी भी जगह पे एड्स दे दूंगा, ऐप्स में मेरे एड्स आ रहे होंगे, फेसबुक पे मेरे एड्स आ रहे होंगे, आप लोग देखेंगे, ठीक है। आपने मुझे एक्सेस करना है, आपको मार्कर्स चाहिए, आप लिखते हैं मार्कर्स और एक लिस्ट आ जाएगी डिफरेंट कंपनीज की जो आपको मार्कर्स प्रोवाइड कर दिए, रेट्स आप उनसे ले लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा मार्कर अच्छा है, फीचर्स गिवन होंगे ऑन इंटरनेट, एंड इट मेक्स लाइफ इजी। सो द ग्रोथ इज ड्यू टू इंटरनेट एंड इट हैज लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल मार्केट, ठीक है। क्लियर क्लास? Yes, sir. Okay. Enterprise system. Now, what's an enterprise system? Do you have any idea? Enterprise system क्या होता है? Enterprise system. ये आप लोग जो ये सिस्टम यूज कर रहे हैं क्या चीज है?
आप लोग एक सिस्टम इधर यूज कर रहे हैं ERP ERP, ये क्या काम करता है? मैनेजमेंट क्या? डेटा डेटा को numbers नंबर्स स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट्स का डेटा क्या मैनेज कर मैनेज कर रहा है? आपकी अटेंडेंस यहाँ पर है, calculate कर रहे हैं एग्जाम मार्क्स अटेंडेंस, आपके साथ साथ मेरा डेटा भी यहाँ पर है, ठीक है, सबका डेटा यहाँ। सो एंटरप्राइज सिस्टम इज अ सिंगल सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर, अ सिंगल सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट integrates the whole organization data, integrates data across an organization, students का डेटा, टीचर्स का डेटा, एम्प्लॉइज का डेटा। लेकिन आप कौन सी चीजें एक्सेस कर सकते हैं? आप वो चीजें एक्सेस कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल भी है, which means you can only look at your timetable, you can look at your attendance and that's it। सिर्फ आप ये कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? I can punch your attendance and look at your attendance, I can punch your marks, look at your marks, मेरी एक्सेस यहाँ पर। फाइनेंस सेक्शन क्या कर सकता है? आपकी फीस पे हुई या नहीं वो देख सकता है, फीस चेक्स, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी, आपके ऊपर कोई फाइन, ब्ला ब्ला। अब उनका देखें, हर एक का अपना एक्सेस है और वो वही काम करता है, वो वहां से उस डेटा को एंटर करता है, आप अपना डेटा एंटर करते हैं, हर कोई अपना डेटा एंटर कर रहा है, आप तो कोई नहीं कर रहे, मैं आपका डेटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक, एडमिशन सेक्शन वाला आपका डेटा एंटर कर रहा है, और जो डेटा एंटर हो रहा है वो सब एक जगह पे आ रहा है, enabling all employees to have simultaneous access to a common set of data. So all of you are accessing the data. Students हैं, employees हैं, teachers हैं, सब इसको access कर सकते हैं, और सब is recorded only once in the company's centralized database. So there is one centralized database, and then unique data elements contained within the database can be linked together, and all of them are linked together. तो अगर कोई आपका एक बंदा देखना चाहे कि स्टूडेंट का क्या थ्रू आउट सब कुछ है वो देख सकता है, फी पेड है, ये है, वो है, सब कुछ देख सकता है, ठीक है। लेकिन हर कोई अपना अलग अलग एक्सेस इस्तेमाल करके या तो डेटा को पंच कर रहा होगा इसके अंदर, डेटा वहां पे गैदर हो रहा होगा, या उसको एक्सेस कर रहा होगा। सो योर ERP इज अ गुड एंटरप्राइज सिस्टम। जी जी क्लास क्लियर? यस सर। SAP का नाम सुना है? SAP नहीं, देख लीजिए, okay. Understand the importance of upholding ethical standards. Now, once again, this is a part of the course जिसमें मैं ज़्यादा शायद फोकस नहीं करता इतना। Ethics वैसे भी हमें बहुत कम है, ठीक है? लेकिन somehow people do not listen to it. People would not follow it. मैं आपको बता दूंगा, आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है? Otherwise, we do not actually take these things seriously. Ethical standards. अब आपके पास standards क्या है ethical जो कि आपको काम करने चाहिए? Not as students, but as professionals, management accountants, ठीक है? Because we are talking about management accounting, तो ये management accounting के जो professionals हैं, जो qualified to be called as management accountants, उनकी बात है. So this is the code of conduct for management accountants. अब management accountant की जो पाकिस्तान के अंदर body है, that is called as SAP ये SAP तो एक system था, enterprise system. उसकी आपको बता. Okay, जी. Management accountants की जो body है पाकिस्तान is called as professional accountants की जो body है वो it is called as नहीं पता. CA वो तो चार्ट है ICAP. So ICAP is the body for the chartered accountants in Pakistan, Institute of Chartered Accountants of Pakistan. और जो management accountants की है is called as Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. ठीक है, ICMP. और इसका जो American जो body है that is called as Institute of Management Accountants. और इसका जो UK की body है that is called as ठीक है, Certified Institute of Management Accountants. ठीक है, CIM. तो ये different bodies हैं. हर कंट्री की अपनी एक प्रोफेशनल बॉडी जो कि डील करती है प्रोफेशनल्स को, मैनेजमेंट अकाउंट्स, ठीक। अब ये क्या करते हैं, ये लोग ये इंस्टीट्यूट्स स्टैंडर्ड्स देते हैं ऑफ एथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं इनको एक वो दे देते हैं गाइडलाइंस कि आपने क्या करना है। इसके अंदर दो चीजें, इट विल बी गिविंग यू एथिकल बिहेवियर, गाइडलाइंस फॉर एथिकल बिहेवियर एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर कहीं पे कोई एथिकल कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वहां पे रेजोल्यूशन कैसे हो,
हम किस तरीके से उस एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यस ओके, सो नाउ एथिकल बिहेवियर की जो गाइडलाइन है इसके अंदर कुछ चीजें रिगार्डिंग कॉम्पिटेंस, रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, रिगार्डिंग इंटेग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। और फिर उसके बाद वो आपको बताता है कि कौन सी पॉलिसीज है और अगर आपके पास एथिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स गो थ्रू दीस क्विकली एंड सी इफ वी कैन फॉलो दिस, ऑल्दो वी आर नॉट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, वी आर ओनली स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स राइट नाउ, लेकिन हम इसको फॉलो करें। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉम्पिटेंस। Okay, so now the first thing is competence. So if you are competent enough, अगर आप competent enough हैं और अगर आप management accountant हैं, तो basically आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि आपने कवर करने होंगे, आपने सब कुछ पढ़ना होगा, इनके एग्जाम्स देने होंगे, and then you would become a management accountant. ठीक है, आप बन गए। Now regarding competence, first thing is that you need to maintain professional competence. Professional competence तब है जब आपके पास वो डिग्री है जो इनकी है, जो कि आपको यहाँ पर ICAM आपको दे रहा होगा, सर्टिफिकेशन दे रहा होगा कि यस यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपने इतना इतना पढ़ लिया है, इतना इतना एग्जाम कर दिया है, इतना इतना आपने वर्क एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग दिस फील्ड, सो यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। नाउ यू नीड टू कम्युनिकेट प्रोफेशनल लिमिटेशंस दैट प्रिक्लूड रिस्पांसिबल जजमेंट। अब अगर कहीं पे यू नीड टू जज समथिंग, अब मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, शुरू में आपको बताया था कि इट्स ऑल अबाउट डिसीजन, सारी डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और कहीं पर कोई लिमिटेशंस आ रही, प्रोफेशनल लिमिटेशंस आ रही, जहां पे कि आप रिस्पांसिबली जज नहीं कर सकते, सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट कि हाँ ये मसला था इधर, एंड देन यू नीड टू कम्युनिकेट दैट कि ये मसला था जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनल जजमेंट मेरी अफेक्ट हो गई। ठीक है, फॉलो एप्लीकेबल लॉज। अब अगर एक बॉडी बनी हुई है जो कि आपको डील कर रही है तो उसके कुछ लॉज है, सो यू नीड टू फॉलो रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, ये सब आपने फॉलो करना है। एंड व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग के लिए जो आप डेटा दे रहे हैं, दैट शुड बी एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइज एंड ऑन टाइम। आपका बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंट्स का काम ही है ना कि जब इस डेटा को प्रोसेस करेगा तो ये आगे जाके मैनेजर्स को देगा ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करे। तो ये सब कुछ सही होना चाहिए, साफ सुथरा, क्लियर, समझ आए, कंसाइज, टू द पॉइंट एंड टाइम आपने ये सब इंफॉर्मेशन देनी। सो दिस इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ये सारी कॉम्पिटेंस है जो कि गाइडलाइंस आपको एथिकल बिहेवियर की जी। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। Now, confidentiality. Confidentiality, now remember, you are the management accountant, a professional accountant. तो आपके पास सारा डेटा का है, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉस्ट का डेटा है, इसमें बहुत सारे डेटा है, आपको पता है कि लेबर की कितनी कॉस्ट आ रही है, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, वो मटेरियल कहाँ से आता है, वो मटेरियल कितने का आता है, blah blah blah. So, do not disclose confidential information unless legally obligated. अगर लीगली आपसे कहीं पे कोई ऑर्डर आए या कोई आपसे कहे कि हाँ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, आपने इंफॉर्मेशन किसी को नहीं, ये उस कंपनी की इंफॉर्मेशन है which is with you, ठीक है, और आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। Do not use confidential information for unethical और illegal information। अब कंपैटिटर हम लोगों ने कहा था, कंपैटिटर वो आता है मुझे कहता है यार ये पैसे ले लो, ये इंफॉर्मेशन दे दो, उसका फॉर्मूला क्या है, सप्लायर आपका कौन है, कितने पे आपको चीजें दे रहा है, blah 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 whatever। So do not use this confidential information for unethical or illegal information, नहीं करना। Okay? Ensure that subordinates do not disclose। खुद तो नहीं कर लेकिन अपने क्लर्क से करवा, अच्छा ठीक है ये काम कर लो, पैसे ले लो, सारे इकट्ठे बांट। So make sure your subordinates are not disclosing this information। ठीक है, so this is confidential। Clear? सर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि शेयर करने की इजाजत आपको नहीं, ठीक है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लीक नहीं कर सकते किसी, which you cannot disclose to others, ठीक है, that's your confidential information। Okay, integrity। अब अगर इतना अच्छा वो मुझे कह रहे हैं कि आपने ये करना है,
तो फिर वो आपसे कहता है कि मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, अब आप अकेले तो नहीं ना, हमने कहा सीएफओ है, ट्रेजरर है, कंट्रोलर है, उसके नीचे और लोग होंगे, तो आप सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस फाइनेंस फंक्शन के अंदर या मैनेजमेंट फंक्शन, तो कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना, और अगर आ जाता है सो यू नीड टू एडवाइस अदर्स ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट कि अगर इसमें ये मसला आ सकता है तो आप इस तरह का काम ना करें, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम कंडक्ट दैट वुड प्रेजुडिस कैरिंग आउट ड्यूटीज एथिकली। अब आपने प्रेजुडिस नहीं होना, डोंट बी बायस्ड, ठीक है, आपने अपनी ड्यूटीज एथिकली परफॉर्म करनी है और ऐसा काम नहीं करना जिससे कहीं पर भी लगे कि यू आर टेकिंग साइड्स विद समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एब्सटेन फ्रॉम एक्टिविटीज दैट माइट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। अब मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे अकाउंटेंट्स के ऊपर कोई गलत काम आ जाए, ठीक है, यानी कोई ऐसा काम ना करें कल को ये कहे वो अकाउंटेंट्स तो ये काम करते हैं, अकाउंटेंट्स तो झूठ लिख देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, इंफॉर्मेशन बेच देते हैं, जो भी, ठीक। सो दिस इज इंटेग्रिटी बिहेवियर व्हिच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। क्रेडिबिलिटी, जो भी आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं इट शुड बी क्रेडिबल, व्हिच मींस इट इज फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसके पीछे पूरा डेटा है, फेयर है। डिस्क्लोज डिलेज, अगर हमने कहा था शुरू में कि इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली, तो अगर इट्स नॉट टाइमली तो डिस्क्लोज द डिलेज और डेफिशिएंसीज इन दैट इंफॉर्मेशन सो दैट द मैनेजर्स कैन मेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। अब मैं मैनेजर को ना बताऊं कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर ये एक चीज सही नहीं है या ऐसे एक चीज में थोड़ा सा मसला है, सर ये इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन सकी क्योंकि इसमें ये चीज थी, और वो उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले ले तो फिर तो वो खराब हो जाएगा। सो यू नीड टू डिस्क्लोज डिलेज और डेफिशिएंसीज इन इंफॉर्मेशन, टाइमलीनेस, प्रोसेसिंग और इंटरनल कंट्रोल्स, कि यहां पर ये चीज सैक्रिफाइस हो गई थोड़ी सी। फाइनली डिस्क्लोज ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट कुड इन्फ्लुएंस द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस। आपने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें सब चीजें लिखें ताकि लोग उसको अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकें। ऐसे ना हो कोई चीज छुपा दे, कोई चीज आपने छुपानी नहीं, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो सब के साथ क्रेडिबल होनी चाहिए। सो दिस इज credibility. Okay, lastly, if there is ethical conflict, हमने कहा ना दो चीजें, एक तो आपका ethical behavior, एक अगर conflict आ जाए, झगड़ा कहीं पे आ जाए, तो क्या करना है? For employees establish policies. सबसे पहले तो ये कि जो policies organization की उसको follow करें, ठीक है? Secondly, unresolved ethical conflicts अगर हैं, जो अभी resolved नहीं है, उसमें क्या करना है? Discuss with your immediate supervisor, जो आपसे बिल्कुल ऊपर टॉप है, आपसे बिल्कुल टॉप, उससे बात करें, ठीक है, या अगर वो इन्वॉल्व है इसके अंदर, आपके साथ कोई झगड़ा आ रहा है उसमें वो इन्वॉल्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर उससे जो ऊपर बनता है उससे बात करें। नेक्स्ट, हाईएस्ट अनइन्वॉल्व्ड मैनेजर, जो इन्वॉल्व ना हो इसके। इफ इमीडिएट सुपरवाइजर इज द सीईओ, कंसीडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमिटी। अब अगर मेरा इमीडिएट सुपरवाइजर सीईओ है तो फिर तो मैं सीईओ से बात नहीं कर सकता और सीईओ भी इन्वॉल्व है, तो फिर मैं क्या करता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उनसे बात करूं या ऑडिट कमेटी को। Contact with levels above the immediate supervisor should only be initiated with the supervisor's knowledge. ये नहीं कि आपने मुझसे बात करनी है, आप मुझसे बात ना करें, आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास चलते हैं। अगर आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास जा रहे हैं तो मुझे बोल दो, supervisor's knowledge, assuming the supervisor is not knowing. आप कहें कि सर ये मसला आ रहा है और ये ऐसा है जो आपके लेवल का मसला नहीं है, so we are going to the one step above you, which is the coordinator, हम उससे बात करें, ठीक, well and good. If I am not involved, अगर मैं involved नहीं, अगर मेरे साथ कोई मसला नहीं है आपका, तो ठीक है, आप मुझे बाईपास कर कर ऊपर जा सकते हैं, ठीक, clear? Yes, sir. Okay. Except where legally prescribed, maintain confidential. ये जो मसले मसाइल हैं, confidential होने चाहिए। यानी आप जाकर लोगों को बताएं, ओ यहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पर ये होता है, this is what people do, this is what people do. When you are working in an organization, conflicts are there, but you do not make them public. ठीक है? It will bring a bad name to the organization. Clarify issues in a confidential discussion with an objective advisor. Now look for an advisor. उसके साथ डिस्कस करें या consult an attorney as to legal obligations. आप कहते हैं कि legally क्या obligations हैं, so talk to a lawyer. उससे बात करें और वो आपको सारी चीजें solve करके देगा। Okay. ये चीजें क्यों जरूरी थी? जो अभी हमने बात की, ये क्यों जरूरी? अगर कोई एथिक्स ना, ठीक है,
कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, आप कहते हैं और वो बस पैसे कमाना है और बस और कोई पर्पस नहीं इन लाइफ, दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू. सो व्हाट विल हैपन? Ethical standards in business are essential for smooth functioning of an advanced market. सिर्फ आपकी नहीं, पूरी इकोनॉमी इस पे चल रही है. अगर आप एथिकली हैं और सब एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी बड़े आराम से चलेगी. लेट्स सी हाउ. If there are no ethical standards, what will happen? If there are no ethical standards in business, economy would fail. All of us who depend on it for jobs, goods, services would suffer. How? I am working on a product, let's say. मैं किसी एक जगह पे और मैं एथिकल नहीं हूँ, मैं उस प्रोडक्ट में इधर उधर कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ किसी और से, वो उसकी बेस पे कुछ ले लेता है, कोई एडवांटेज ले लेता है, कुछ पैसे ले लेता है. इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वुड एक्चुअली डिक्रीज. ठीक है, खराब हो गई क्वालिटी. ये अजीम निकलता है. अजीम ऑब्वियसली कहीं और काम कर रहा होगा, कुछ और कर रहा होगा. ठीक है, अजीम ले लेता है, अजीम कहता है यार ये क्या है, ये कैसी कंपनी है, ये इस तरह है. लेकिन अजीम खुद भी अनएथिकल है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल काम करता है, वो सर्विस कोई और यूज कर रहा है. ठीक, लेकिन वो खुद भी अनएथिकल है. तो क्या होता है अल्टीमेटली? द होल इकोनॉमी सफर्स. क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विसेज डिक्रीजेस. सब कुछ खराब हो जाएगा. ठीक है, all of us who depend on it for jobs, goods, services would suffer. Everybody would suffer. Your economy would suffer. So ethical standards are important. अब अगर पूरी इकोनॉमी हमारी सफर कर रही है और हम कहते हैं कि नहीं यार करप्शन है, ये है, वो है, तो उसका मसला एक बंदे का नहीं है. एक बंदे ने वो खराब नहीं किया, एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन खराब कर देगा. तो इसका मतलब ये कि मेजॉरिटी लोग सही हैं. ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आता है. तो एक बंदा सही नहीं होता तो वो फिर किक आउट हो जाता है, उसका नजर वीकेस्ट लिंक नजर आ जाता है. लेकिन अगर आप लोग परवाह ही नहीं करते कि व्हाट्स द वीकेस्ट लिंक और आप बस लगे हुए हैं, बस everybody is doing the same thing, so then you don't have a good economy, good smooth functioning economy. तो फिर वही होता है जो हमारे साथ होता है. ठीक है, so abandoning ethical standards in business would lead to a lower quality of life with less desirable goods and services at higher prices. Prices भी ज़्यादा हो जाए. मैं कहूँगा ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, अभी में से वो देखा, मैं प्राइस ज़्यादा चार्ज करूँगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा कर देंगे, उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. वो जो काम करता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी. तो हर जगह पे इट विल बी सेम. एंड इफ यू कैन सी इट ऑब्जेक्टिवली, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब होती जा रही है. ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब हो गई है. सो देन व्हाट यू डू, यू प्रेफर फॉरेन गुड्स. फॉरेन गुड्स कहाँ से आएंगी? बाहर से. इंपोर्ट्स करेंगे. इंपोर्ट्स के लिए क्या चाहिए? पैसा. पैसा कहाँ से आएगा? आपकी अपनी गुड्स तो बाहर नहीं जा रही. जब वो बाहर नहीं जाएगी तो पैसा वहां से आएगा नहीं. जब पैसा वहां से आएगा नहीं और आपको पैसा चाहिए बाहर की चीजें लेने के लिए, बाहर से पेमेंट खराब हो जाएगा. इन्फ्लेशन. ठीक है, बाहर से चीजें नहीं आ सकेंगी. एंड यू सफर जस्ट लाइक यू आर सफरिंग राइट नाउ. ठीक है, सो फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी यू नीड टू फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स. गॉट द आइडिया क्लास? Yes, sir. कंपनी कोड्स ऑफ कंडक्ट. जी, इसके बारे में कहीं पढ़ा? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ा है. कोड ऑफ कंडक्ट तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलेगी. पे चल रही है. दैट इज बेसिकली कंपनी कोड्स ऑफ कंडक्ट. सो ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज रिस्पांसिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स. सबके लिए. सिर्फ ये नहीं कि आपके एम्प्लॉइज कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स के लिए भी, आपके सप्लायर्स के लिए भी. बट जो हमारी पॉलिसीज है, ये काम इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, इसको पैसे इस तरह देने हैं, एम्प्लॉय को इस तरह देने हैं, सप्लायर को इस तरह पेमेंट करनी है, उससे पैसे इस तरह लेने हैं, सब कुछ. And to the communities in which the company operates, and also to that community जहाँ पे आप काम करते हैं. Now this is something which we do not care about in Pakistan, countries like Pakistan या less developed countries. हम लोग नहीं परवाह करते कहाँ पे हम. ठीक है, हम जहाँ पर जिस कम्युनिटी में हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम we are responsible to them as well. फैक्ट्रीज लगी हुई हैं पीछे इंडस्ट्रियल एरिया में. How many of you live in Hyderabad? Okay. कभी शाम के टाइम निकले और जरा बाहर देखें क्या रहा. ठीक, तो because nobody cares, they do not care. ये जो नाला जो वहां से आ रहा है, कभी इसके अंदर देखें, इसके अंदर पानी आता है, इसके अंदर क्या आता है? Try to see इसके अंदर क्या होता है? कंपनी का वेस्ट, फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है इसके अंदर. ठीक है, ये पानी नहीं है,
ये फैक्ट्रीज का वेस्ट है जो उसमें से निकलता है, केमिकल मिला हुआ, और जब वो नीचे जाता है तो आपका ड्रिंकिंग वाटर इज एट स्टेक। वो गायें वायें तो चल रही होती है ना, बकरियां, गाय, भेड़, बकरियां, वो सब वो पी रहे होते हैं, ठीक, वो उनके सिस्टम में आ रहा है। वो खराब गोश्त आप लोग खा रहे हैं, वो आपके सिस्टम में आ रहा है। सो एवरीबॉडी इज सफरिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट। क्या एथिक्स ऐसे नहीं आते कि बस एक बंदा खराब है तो चलो यार सही है, मुल्क सही चल रहा है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द company codes of conduct, and it's not only for the employees, it's for the customers, suppliers, and also the communities where you operate. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. Codes of conduct on the international level. अच्छा, ये कभी नाम सुना? IFAC. सुना है? ये क्या करता है? ये क्या करता है? ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये अगर आपने अकाउंटिंग जब पढ़ी थी फर्स्ट टाइम तो वहां पे आपने सुना होगा, बिल्कुल पहले चैप्टर, बिल्कुल पहले चैप्टर। ये वो मेन बॉडी है फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो अकाउंटेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए गाइडलाइंस बनाती है। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स issued by the International Federation of Accountants govern the activities of professional accountants worldwide. ये सब के लिए बना, इन सब चीजों को कवर करें, ठीक है। अभी तो हमने थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी ना कि कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन सब को तो करती है, उसके अलावा ये भी करती है, ठीक है। टैक्सेस क्या करना है, इंडिपेंडेंस, फीस एंड कमीशंस, एडवर्टाइजिंग, हैंडलिंग ऑफ मनीज, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, इन सब चीजों में आप लोगों ने किस तरह एथिकल बिहेवियर करना है वो भी आप, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडलाइंस सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बनाती कि एसेट को कहां पे लिखना है और लायबिलिटी को कहां पे लिखना है, ये एथिकल बिहेवियर भी आपको बता रही है। लेकिन मसला ये है कि हम सब कुछ सीख जाते हैं और ये चीजें छोड़ देते हैं। ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। लेट मी सी, वेयर आर वी? We are here, so only 2 slides है। बहुत ऊपर है, हम ऊपर है। 7 स्लाइड। ये है ना, ये बहुत नहीं, ये because we are actually giving the sum and the odds which works in US, so ऐसा नहीं है, वैसे ही हो। We still have 5 minutes, let's finish it off quickly so that next time, मतलब ये introduction chapter था, next chapter is from where we start the real work, ठीक है। वहाँ से काम शुरू हो जाएगा, हम लोग अपनी जो cost concepts हैं वो start करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह more onwards. So let's cover it quickly. Corporate governance ये पता है आपको? Idea about corporate governance? कंपनीज को कैसे कंट्रोल, गवर्न कैसे करें, ओके। सो द सिस्टम बाय व्हिच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। अब कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टॉक होल्डर्स, टॉप मैनेजमेंट, कौन करता है? सबसे पहले और पर स्टॉक होल्डर्स नहीं, सबसे पहले पहले स्टॉक होल्डर फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्टॉक होल्डर्स कौन है? जो हम शेयर होल्डर्स कौन है? जिन्होंने ओन करते हैं, दे आर द ओनर्स। काम कौन करता है? मैनेजमेंट। देखिए आप गौर से देखिए, दे आर द ओनर्स, दे आर द ओनर्स, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग, ठीक, but they don't have full control. Board of directors, so they have the control, but only about the major issues. Material कौन सा खरीदना है, किससे खरीदना है, क्या ये board of directors decide करेगा? So they are doing the operational work. सारा काम तो ये कर रहे हैं, मतलब कंपनी तो ये चला रहे हैं, ठीक, कंपनी है इनकी, चला ये रहा है, कंट्रोल ये करता है, मेजर्स। अब जरा गौर से देखिए इसका लिंक कैसे है। Look at it. The board of directors will actually be controlling the top management,
दे आर डूइंग द ऑपरेशनल वर्क। ये रोज का काम है ना, आज आएंगे, आज क्या काम करेंगे, आज हम ये मटेरियल लेंगे, यहाँ पे एक ब्रांच खोलनी है, दूसरी प्रोडक्ट स्टार्ट करनी है, इसको यूं करना है, इतने एम्प्लॉइज को हायर करो, इतने को फायर करो, ये करो, वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो दे आर डूइंग दिस। लेकिन इनका काम क्या है? इन्होंने तो सिर्फ पैसे दिए एंड दे आर इंटरेस्टेड इन इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हाँ, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेंगे ये लोग, ये लेकिन board- इनको सिर्फ काम किससे है? वेल, शेयर होल्डर्स वेल। ये कहते हैं कि मैंने 5 रुपए इसमें लगाए थे, वो 5 रुपए 6 बन गए, 7 बन गए, 8 बन गए, शेयर होल्डर्स वेल। ये ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं हो रहे तो ये बड़ी बेकार कंपनी है, इससे पैसे निकाल लो, किसी और जगह पे इन्वेस्ट करो। दिस व्हाट स्टॉक होल्डर्स वुड डू, शेयर होल्डर्स वुड डू, इन्वेस्टर्स वुड डू। ठीक, ओके। सो दे वांट रिटर्न्स। असल काम ये कर रहे हैं, अगर काम गलत हो गया and if you fail, so that would be something on their part. अब इनको तो मैं दे रहा हूँ सैलरी, इसको मैं 1000 रुपए देता हूँ, अब इसको कैसे कहूँ यार कि तुमने पैसे कमा के देने हैं? ये सब कुछ देख रहा है, मेन चीजें। तो ये क्या करता है, ये इसे कहता है कि मैं आपको इंसेंटिव दूंगा। यार आप 5 रुपए का प्रॉफिट कमा के दो तो उसमें से 1 रुपया आपका, आप 5 रुपए का प्रॉफिट कमा के दो, मैं आपको 1 शेयर दे दूंगा। सो नाउ यू ओन द कंपनी, 1 शेयर से, ठीक है? सो इंसेंटिव एंड आई एम मॉनिटरिंग, मैं देखता हूँ ये काम कर रहे हैं सही, नहीं कर रहे सही, ठीक है? क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, गलत डिसीजन लेंगे तो मैं इनको पकड़ूंगा, ठीक? ये काम करेंगे फॉर अ साल, बट दे वुड बी गिवन इंसेंटिव्स टू गेट मोर रेवेन्यूज या टू गेट प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स करें, और जो प्रॉफिट्स आएंगे वो इनके लिए आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव इनका पूरा होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव in an organization or corporate structure would be is only profit, ठीक? ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं हम, प्रॉफिट हमें चाहिए, ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये अचीव करता है और इसको ये मॉनिटर करता है और इसको लालच देता है इंसेंटिव। गॉट द आइडिया? सर ये इन दोनों ये स्टॉक होल्डर जो है वो इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दोनों को। स्टॉक होल्डर तो कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा, देखिए इससे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसकी, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इसकी। ये जब काम करेगा तो पैसे कमाएगा, ठीक है? पैसे कमाएगा तो अपनी सैलरी भी इसको मिल रही होगी, लेकिन वो सैलरी तो फिक्स होती है। सैलरी फिक्स है तो अगर ये पैसे ना भी कमाए तो ये सैलरी लेगा, तो फिर इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहूँगा यार मेरा क्या है, बस आऊंगा इधर, बस पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा। तो फिर मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि नहीं, अगर आपने इस तरह कर दिया, इतना प्रॉफिट कर दिया, तो मैं आपको ये दे दूंगा, 2 रुपए और दे दूंगा, 5 रुपए दे दूंगा, या मैं आपको इसका शेयर दे देता हूँ कंपनी का। मैं कहता हूँ कि इसमें अब लालच आ जाएगी कि ये तो मेरी अपनी कंपनी है, ठीक है? यानी अगर प्रॉफिट होगा तो वो मेरे पास आएगा, तो ये अच्छा काम करेगा, ठीक है? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स would give incentive and monitor the top management who would actually be working for the objective of the stock holders. और ये theory है जो यहाँ पे follow होती है, do you remember this? सुना था मैनेजमेंट में सुना। इसमें आपसे कह रहा था ना, पूरा पहला चैप्टर सारा मैनेजमेंट है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप पढ़ा? नहीं पढ़ा? गुड, ठीक है? ओके, तो फिर ऐसे करते हैं 2 और 3 और we'll do that inshallah tomorrow. Okay? Do you have a class tomorrow? Yes, sir.